قاسمی کتب خانہ جموں کے اشتراک سے منعقد کی گئی ہے۔ آج کی اس تقریب کی صدارت ماہ ناز ادیب، شاعر، تنقید نگار جناب ایاز رسول مہمان ذی وقار کی حیثیت سے سینئر صحافی، جموں کشمیر وقف بورڈ کے ممبر، ہر دل عزیز جناب سہیل کاظمی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ مہمان خصوصی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ مہمان اعزازی جناب اشوک انگور رانا ریٹائر IAS آفیسر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سر میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اور خوش آمدید کہتی ہوں۔ حسب روایت سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا استقبال گلدستے سے کریں گے۔ پروفیسر ریاض احمد سے درخواست ہے کہ وہ جناب آزاد آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ آج کا پروگرام کتابوں کے اجرا کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان یہاں تشریف فرما ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت ایاز رسول ناسکی صاحب کر رہے ہیں۔ یہ اردو اور کشمیری کے ماہر ناز ادیب، شاعر اور انشائیہ نگار ہیں۔ ان کے ساتھ دانش رانا صاحب IPS، یہ بھی فکشن نگار ہیں۔ ابھی معلوم ہوا کہ ان کی بھی ایک کتاب جو ہے ناول کی شکل میں آ چکی ہے، اور سر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ سہیل کاظمی صاحب مہمان ذی وقار کی حیثیت سے تشریف فرما ہیں۔ یہ صحافی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور کس طرح سے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ دن بھر کی ایکٹیویٹیز جب دیکھتا ہوں تو بہت ہی مصروف شخصیت میں سے ایک۔ ابھی وقف بورڈ جموں کشمیر کے یہ ممبر بھی بنے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ اور بھی منزل جو ہے وہ طے کریں گے اور اوپر تک یہ پہنچیں گے، ہماری یہ دعا ہے۔ اور ان کی یہ محبت ہے کہ جب بھی میں آواز دیتا ہوں وہ ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں۔ سر آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں۔ اشوک صاحب ریٹائرڈ IAS ہمارے درمیان ہیں۔ سر آپ کا استقبال ہے، خوش آمدید۔ اور ہمارے درمیان یہاں کہکشاں ہیں، ادیب، شاعر، مختلف انجمن سے یہاں تعلق رکھنے والے افراد یہاں موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ انجمن فروغ اردو سے فوزیہ مغل صاحبہ ہیں، سہیل خورشید کاظمی صاحب ہیں، پیارے حتاش صاحب ہیں، اور بانہال کی ایک انجمن چلاتے ہیں ہمارے زاہد بانہالی صاحب، بہت ہی ایکٹیو ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ اسلم شہزاد صاحب کنکی اور ساہتیہ اکیڈمی نام یافتہ ادیب، پروفیسر قدوس جاوید، جناب خالد حسین صاحب، اور اس کتاب کے پبلیشر لطف الرحمان آزاد سے التماس کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے کتاب کی رسمی رونمائی کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ قدوس جاوید، پروفیسر قدوس جاوید اردو تحقیق و تنقید کا ایک معبر نام ہے۔ ان کی علمی و ادبی سرگرمیاں آج بھی جاری و ساری ہیں، جس کا زندہ ثبوت آج کی نئی کتاب ادب کے معمار ہیں۔ دوسری کتاب خالد حسین کی خود نوشت میں زندہ آدمی ہوں ہے۔
खालिद हुसैन उर्दू और पंजाबी के मशहूर और मारूफ फिक्शन राना साहब मेहमान पुरवकार, आयातुल नाज़की साहब मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से तशरीफ़ रखते हैं, सुहेल काज़मी साहब, दीगर तमाम बिलखुसूस शोबा के सदर मोहम्मद रियाज अहमद साहब, आप सबका शुक्रिया। और बात वही है कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। आज दो ऐसी जिंदा अदबी शख्सियात हैं, बल्कि अगर आप इन्हें आलमी पैमाने के तनाजुर में देखें तो आप अपनी एक हैसियत रखते हैं, आप अपना एक मकाम रखते हैं। जख्म है, फिर भी बहुत सुकून है। जनाब से नाज़की साहब, मेरे भाई एडिशनल डायरेक्टर जनरल दानिश राना साहब, हमारे सीनियर मोस्ट IAS और इसी लिटरेचर से जुड़े हुए अंगुराना साहब, रियाज साहब, खालिद साहब, कदूर साहब, मुजाहिद साहब, फौजिया जी, सारे प्रोमिनेंट फेसेस हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना मैंने सोचा था क्या क्या बोलूं, लेकिन इतना खूबसूरती से 5-10 पेपर पढ़े वो भूल ही गया मुझे क्या बोलना, क्योंकि सब कुछ उससे पता नहीं क्या पैदा होंगे, कभी कुछ। लेकिन इस्लाम में एक ही जन्म है, और जिसको ये कंसेप्ट है कि हमारा एक ही जन्म है, तो मैं समझता हूँ उनको इन दो शख्सियत जिनकी किताबें रिलीज हुई हैं, इनसे यही रोल मॉडल हैं जिनको लगता है कि एक जन्म में क्या क्या करना है। एजुकेशनिस्ट बनना है, DC बनना है, सेक्रेटरी बनना है, राइटर बनना है, ग्रुप लीडर बनना है, बस को लेकर पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के रास्ते ठीक करने हैं, कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि जिंदगी एक ही है, दूसरी जिंदगी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है परसों, करते कुछ नहीं। तो आप लोग ही सही रहनुमाई करते हैं समाज की, और समाज को आप जैसे रोल मॉडल्स की जरूरत है। और जिस तरह हम टूटते जा रहे हैं, इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ है, खिते से खिता टूटता जा रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ लिटरेचर, किताबें और ज्यादा से ज्यादा ऐसी नशिस्तें सोसाइटी को, मज़ाहिब को, जबानों को, मुल्कों को, दुनिया को जोड़ने का काम करती हैं, जो कोई भी पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, कोई भी और इंसान नहीं कर सकता, तो आए एक राइटर। अब गलती से मुझे परसों चौथ से सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया, और पहली बार कुछ प्रोग्राम्स हैं तो मुझे वहां जाना है, और कोशिश करेंगे कि उस पर भी काम अच्छी तरह करें। और मैं कोशिश करूंगा कि वक्फ को भी उर्दू डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा यहाँ भी कश्मीर, क्योंकि ये जो बीमारियां रियासत में फैल रही हैं, अगर इसमें अदब और अच्छी तरह इंट्रोड्यूस हो जाए, सूफीज्म के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, कुछ और माध्यम से, वहां की श्राइन्स को अगर इन्वॉल्व करें, शबीर मुजाहिद साहब की मदद लेंगे कि वहां भी वो सूफियाना कलाम शाम को गूंजे। और अब तो वक्फ है, अच्छा सेंट्रल बोर्ड है और उसको मरकज बैक कर रही है, तो कोशिश करेंगे कि बात कुछ और तरह से की जाए, और ये जो जंग लगे हुए हमारे दिमागों में है, ये बातें हम ना डिस्कस करें, और एक खुशहाली की तरफ, एक मोहब्बत की तरफ, एक अमन की तरफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी चले। उसमें हम सबको कंट्रीब्यूट करना है एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम HOD हैं, चाहे प्रिंसिपल हैं, जिस भी स्पेक्ट्रम से। मेरे बड़े भाई नाज़की साहब ने कहा पुलिस वाला और जर्नलिस्ट दोस्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको हमें दोस्त बनाना है, क्योंकि हम दोनों के बिना आप चलेंगे नहीं। पुलिस वाला भी कहीं ना कहीं काम आता रहेगा, और जर्नलिस्ट भी आपको काम आता रहेगा, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं कि हम जिसके दोस्त बन जाते हैं, मरते दम तक उसके दोस्त रहते हैं, आप मिले या ना। अब आपको क्या किस जर्नलिस्ट का हुआ, मैं उस पर, हम दोनों अपने अपने फील्ड में भारत रत्न है और इंशाल्लाह रहेंगे, और आपकी खिदमत करते रहेंगे। तो these words, I am thankful to all of you. Best of luck. Thank you very much. सर, सबसे पहले तो आज आपकी बुक रिलीज हुई है, तो इस पर मैं आपको बहुत बहुत मुबारकें देती हूँ। शुक्रिया। सर, बताएं अपनी इस बुक के बारे में। इसका नाम है मैं ज़िंदा आदमी हूँ, और ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, और ये इसमें मेरी ज़िंदगी का पूरा निचोड़ है। जिन हालात से मैं गुज़रा हूँ उन सब का बयान है इस किताब में, और बर सगीर के जो हालात हैं उसके बारे में इसका ज़िक्र है, जम्मू कश्मीर के हालात का ज़िक्र है, मेरी अदबी ज़िंदगी जो अदबी सफ़र मेरा है जो तकरीबन 50 साल पे मुहित है, उस सब का इसमें ज़िक्र है। इसके अलावा यानी
दोनों मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उन वाक़यात का जिक्र है जो आपस में मिलाने वाले यानी प्यार मोहब्बत बढ़ाने वाले वाक़यात हैं, उनका मैंने इसमें ज़िक्र किया है। इसमें जो भारत की प्राचीन जो हमारी सभ्यता थी, जो कि पाकिस्तान के इस इलाके में है, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, या जो ये जो है अपने तक्षशिला है, इस सब का जिक्र है उसमें। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ जहाँ मैंने ड्यूटी दी है, उनमें जो हालात मैंने देखे, उन सब का इसमें जिक्र है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं इस किताब को ज़रूर पढ़ें, और इसमें उनको बहुत कुछ मिलेगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आज हमारा यहाँ मौजूद होने का एक ही कारण था, जो आज आपके यहाँ पर जो बुक रिलीज़ हुई है उसके बारे में आज आप कुछ बताइए। हाँ, आज 2 किताबों की रस्म रूनुमाई हुई है। एक किताब जो खुद नविश्त है जनाब खालिद हुसैन साहब की, मैं ज़िंदा आदमी हूँ। खालिद हुसैन साहब न सिर्फ पंजाबी के बल्कि उर्दू के भी मुस्नद फ़िक्शन निगार हैं, और उन्हें अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो उनकी किताब मैं ज़िंदा आदमी हूँ की रस्म रूनुमाई हुई। और दूसरी किताब प्रोफेसर कुद्दूस जावेद साहब की है, जो उर्दू के मुस्तनद अदीब, नक्काद और मुहक्किक हैं, अदब के मेमार, और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से है। उनकी ये पहली जिल्द है, और उनकी ये कोशिश है कि इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो उर्दू अदीब हैं, उदबा हैं, शायर हैं, मुसन्नफ़ीन हैं, उनकी तारीख़ मुरतब की जाए। तो उस हवाले से उनकी ये पहली जिल्द है, पहली जो है वो फर्स्ट वॉल्यूम है। तो इस तरह ये 2 किताबों की रस्म रूनुमाई हुई है। और हमने ये भी इस तकरीब में किया है कि जो हमारे साहित्य अकेडमी इनाम याफ्ता 2 उदबा हैं मौजूद, जिनमें खालिद हुसैन साहब और असीर किश्तवारी साहब, उनको भी हमने एजाज़ यानी उनको ऑनर किया है कि उनको जो है हमारी जम्मू कश्मीर का नाम जिस तरह से पूरे कौमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मशहूर हुआ उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने की वजह से, तो उनको भी ऑनर किया गया है इस प्रोग्राम में। तो ये आज के इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सोसाइटी तक, समाज तक, मुआशरे तक पहुँचाया जाए, और जो किताबें या जो अदब तख्लीक हो रही हैं उससे लोग आशना हो। इसीलिए आप लोगों को भी मदऊ किया गया था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर, जो आज बुक रिलीज़ हुई है जिसका नाम है अभी मैं ज़िंदा हूँ, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ऑटोबायोग्राफीज़ लिखना और बायोग्राफीज़ लिखना बड़ा मुश्किल होता है मुस्कान बच्चे, लेकिन खालिद साहब एक इतने खूबसूरत इंसान हैं। ये एक ब्यूरोक्रेट रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे, राइटर हैं, स्कॉलर हैं, सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं। तो ऐसे इंसान जब कोई किताब लिखते हैं, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इतनी शेड्स एक इंसान में और 50 साल के कैरियर में डिफरेंट स्पेक्ट्रम सोसाइटी पे काम किया, तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये ऐसे लोग रोल मॉडल्स हैं सोसाइटी में, जिनके फुटप्रिंट्स पे हम सबको चलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है, और उस ज़िंदगी में आप इतना काम करते हैं और इतने जगहों पे आप अपने फुटप्रिंट छोड़ते हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ, दुआ करता हूँ इनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, ताकि ये और किताबें लिखें, और सोसाइटी को जोड़ने का काम करें, और इंडिया पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने का काम करें, अदब के साथ मोहब्बत फैलाते रहें, क्योंकि लिटरेचर हमेशा प्यार फैलाता है, मोहब्बत फैलाता है डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। सर, अगर यही बात करूँ अब मैं लैंग्वेज की, तो जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है या पहाड़ी लैंग्वेज है या गुजरी भाषा ही क्यों ना हो, आजकल वो बहुत कम यूज़ होती दिख रही है। तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उर्दू डिपार्टमेंट का इसमें क्या योगदान? देखिए, बदकिस्मती ये है कि सियासतदान ज़बानों को भी सियासत के साथ जोड़ लेते हैं। तो उर्दू, आप सुबह उठती हैं, गाना देख कर गाती हैं तो उर्दू का गाती हैं, बॉलीवुड देखती हैं जितनी मूवीज़ तो उर्दू में बनती हैं, नाटक देखती हैं तो उर्दू में। कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं उर्दू के साथ, हिंदी के साथ। हर लैंग्वेज का एक अपना रख रखाव है, उसका अपना एक बढ़ाव है, प्यार है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़बानों की फ़रोग में अपना योगदान देते रहें, और जिस मुल्क में जितनी ज़ुबानें होंगी वो मुल्क उतना ही खूबसूरती से खिलता रहेगा जितना भारत खिल रहा है। तो ये कहना कि वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लैंग्वेजेस कभी ख़त्म नहीं होती। लैंग्वेजेस की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता। ज़बानें खुली फ़िज़ा में काम करती है और मोहब्बत फैलाती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने विचार हमारे समक्ष रखे। थैंक यू।